Hello everyone, welcome to Legal Bites with Ronak. I am Ronak Agarwal. In today's lecture, we will understand the definition of law by Jeremy Bentham. I assure you that after watching this lecture, you won't be required to use any other source for this topic, and comprehensive notes are also provided. Jeremy Bentham was born in the year 1747. Jeremy Bentham belongs to the analytical school of jurisprudence. First of all, let me clarify there are various schools of jurisprudence, including analytical school, sociological school, historical school, etc. I will explain you about all these schools as and when we cover jurists belonging to these schools. John Austin was also the one who belonged to analytical school. I have already covered John Austin. You can check out the video. The advocates of this school are neither concerned with the past of the law nor with the future of it, but they confine themselves to the study of law as it actually exists. इसीलिए ही एनालिटिकल स्कूल को हम पॉजिटिव स्कूल भी कहते हैं. Why? बिकॉज इस स्कूल के जो ज्यूरिस्ट होते हैं वो लोग स्टडी उसकी प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं. लाइक एज लो एक्चुअली इज. क्या होना चाहिए, क्या पास्ट में था, दैट डजेंट मैटर. क्या है उसकी स्टडी करते हैं एनालिटिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट. जेरेमी बेंथम इज वन ऑफ देम. Bentham divided jurisprudence into expositorial and sensorial jurisprudence. Expository jurisprudence is concerned with law as it is without any regard to its moral or immoral character. Sensorial jurisprudence, on the other hand, is concerned with what the law ought to be. Expositorial jurisprudence का example है जैसे the speed limit is 60 किलोमीटर पर आवर. मान लो ये लो है. Sensorial jurisdiction means the speed limit should be 50 किलोमीटर per hour for public safety or environmental concerns. मान लो एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ हम वैसे ही रीड करते हैं जैसे वो एज इट इज उसकी प्रेजेंट फॉर्म में है. जैसे स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए. लेकिन सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम रीड करते हैं कि लॉ क्या होना चाहिए. जैसे 60 किलोमीटर पर आवर की जगह स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए ताकि इश्यूज ना हो सेफ्टी इश्यूज ना हो, इन्वायरमेंट इश्यूज ना हो. तो क्या होना चाहिए वो Jeremy Bentham is not concerned with that. He is concerned with what law is in its present form. Law present में क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर. तो हम उसको वैसे ही रीड करेंगे. क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, morally immorally क्या करेक्ट है, वो उससे जेरेमी बेंथम is not concerned. Right? He supported the economic principle of laissez-faire, which meant minimum interference of the state in the economic activities of individuals. Bentham propounded the principle of utilitarianism. According to this theory, the right aim of legislation is the carrying out of principle of utility. In other words, the proper end of every law is the promotion of great happiness of the greatest number. Now, जेरेमी ने एक प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. उसके अकॉर्डिंग मॉरली राइट एक्शन वही है जो प्रोड्यूस करते हैं ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर. अकॉर्डिंग टू बेंथम, मॉरली राइट एक्शंस वही हैं जो ग्रेट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर प्रोड्यूस करते हैं. और जिनसे सफरिंग इंक्रीज होती है वो एक्शंस पेन देते हैं. जेरेमी ने प्लेजर एंड पेन थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग जो एक्शंस ग्रेट हैप्पीनेस प्रोड्यूस करें फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर वो प्लेजर देते हैं. जो एक्शंस सफरिंग प्रोड्यूस करते हैं वो पेन देते हैं. In his view, nature has placed mankind under two sovereign masters, namely pain and pleasure, which alone decides as to what men should do or not do. This he termed as hedonic calculus or felicific calculus, which later came to be known as his principle of utility. बेंथम की जो यूटिलिटेरियन थ्योरी है वो एक्शंस को गुड या इविल उनके कॉन्सिक्वेंसेस से चेक करती है. अगर वो ग्रेट हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्लेजर है, वो भी फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर.
डजंट मीन कि कोई एक इंडिविजुअल को किसी एक एक्शन से हैप्पीनेस मिल रही है तो वो गुड है. Happiness of the greatest number should be created. Then that is pleasure. और उसके लिए जेरेमी बेंथम ने एक हेडोनिक कैलकुलस बनाया है. उसके अंदर 7 क्राइटेरियाज दिए हैं इंक्लूडिंग इंटेंसिटी ड्यूरेशन. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे कि क्या वो क्राइटेरिया है. उस उनके बेसिस पे हम वो जज करेंगे एक्शंस को और चेक करेंगे वेदर प्लेजर ज्यादा है या फिर पेन ज्यादा है. अगर प्लेजर ज्यादा है तो वो एक्शन सही है, गुड है. अगर पेन ज्यादा है तो दैट एक्शन इज इविल. Example, actions like saving a drowning person are good, while harmful acts like drug addiction are evil. लेकिन seemingly good act जैसे कि buying a book, it is a good act, is evil if donating the money creates more happiness, more pleasure for more people. तो हम उस हेडोनिक कैलकुलस के बेसिस पे चीजों को चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने चेक किया कि बाइंग अ बुक आपको कितना हैप्पीनेस दे रहा है. देन आप चेक कर रहे हैं कि डोनेटिंग मनी आपको कितना हैप्पीनेस दे रहा है. अगर डोनेटिंग मनी आपको ज्यादा हैप्पीनेस दे रहा है तो इट मीन्स दैट एक्शन इज करेक्ट बिकॉज इट इज क्रिएटिंग greatest happiness of a greatest number. Bentham defined utility as the property or tendency of the thing to prevent some evil or procure some good. According to him, the consequence of good and evil are respectively pleasure and pain. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि good actions का consequence क्या होता है? Pleasure. और evil actions का consequence होता है pain. यही मैंने चार्ट फॉर्मेट में बना दिया है. आप अपने आंसर राइटिंग में भी ये चार्ट इसी तरीके से बना सकते हैं. It will help you grab some extra marks, right? The task of government, according to Bentham, was to promote happiness of society by further enjoyment of pleasure and affording security against pain. He was convinced that if individuals comprising society were happy and contented, the whole body politic would enjoy happiness and prosperity. जो बैंथम की pleasure and pain theory है, उसके according such actions, such laws should be made which produces greatest happiness of the greatest number. अगर हर इंडिविजुअल सोसाइटी में रहने वाला इंडिविजुअल खुश है तो ऑटोमेटिकली जो पॉलिटिकल बॉडी है हमारी सोसाइटी है वो ऑटोमेटिकली खुश होगी. तो गवर्नमेंट का टास्क यही होना चाहिए वो सोसाइटी में हैप्पीनेस प्रमोट करे और पेन को सफरिंग को दूर करे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करके सच लॉज प्रोवाइड करके. राइट. The philosophic calculus involves evaluating an action's potential pleasure and pain based on 7 specific circumstances. First is your intensity, means how strong or powerful is the pleasure or pain. कि जो pleasure या pain हो रहा है human action से हमें वो कितना strong है, like उसकी intensity क्या है. Next is your duration. How long will the sensation of pleasure or pain last? कि कितने टाइम तक वो प्लेजर या पेन रहेगा. नेक्स्ट इज सर्टेनिटी. हाउ लाइकली इज दैट द प्लेजर और पेन विल एक्चुअली अकर. सर्टेनिटी, इनसर्टेनिटी मतलब कि हम ह्यूमन एक्शन तो कर दे रहे हैं लेकिन कितनी सर्टेनिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है कि जो प्लेजर और पेन के लिए हमने वो ह्यूमन एक्शन किया है वो एक्चुअल में पेन या प्लेजर या पेन एक्चुअली अकर होगा. Next is your certainty. How likely is it that the pleasure or pain will actually occur? हम ह्यूमन एक्शन कर रहे हैं बट उसकी क्या गारंटी है कि प्लेजर या पेन होगा ही होगा. नेक्स्ट इज propinquity. How soon will the pleasure or pain be experienced? Means nearness in time. मतलब कितने टाइम तक वो प्लेजर और पेन हमें एक्सपीरियंस होगा. नेक्स्ट इज fecundity. Whether further pleasure will be caused. कि एक बार प्लेजर हो गया आगे भी उससे हमें प्लेजर ही होता रहेगा या फिर एक बार पेन हो गया तो आगे भी हमें पेन ही होता रहेगा. वेदर फर्दर प्लेजर और फर्दर पेन विल बी कॉज्ड. नेक्स्ट इज प्योरिटी. चांसेस दैट प्लेजर विल बी फॉलोड बाय पेन और वाइस वर्सा. फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन एक्शन से अभी हमें प्लेजर मिल गया लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पेन हो रहा है या फिर किसी एक्शन से हमें पहले पेन हुआ कुछ टाइम तक देन हमें कुछ टाइम बाद उसका प्लेजर हो रहा है. तो chances that it will be followed by pleasure will be followed by pain and vice versa. Extent, number of persons who will be affected by pleasure or pain resulting from the action.
मीन्स कितने लोगों को वो प्लेजर होगा या कितने लोगों को वो पेन होगा उस एक्शन से। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाऊंगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्टिंग अ बैड टीचर मीन्स किसी बैड टीचर की शिकायत लगाना। तो अगर हम उसकी इंटेंसिटी चेक करेंगे, तो अगर हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हाई पेन फॉर टीचर, टीचर के लिए पेन होगा क्योंकि उसका पोटेंशियल जॉब लॉस हो सकता है। लेकिन हाई प्लेजर फॉर स्टूडेंट्स, वो अच्छे से हमारी अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए तो प्लेजर होगा। उसी साइड अगर हम उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, बैड टीचर को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो इट विल बी हाई पेन फॉर स्टूडेंट्स, उनको रेगुलर इमोशनल डिस्ट्रेस होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। पेन फॉर द टीचर मे बी लॉन्ग, अगर हम उनको रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको जॉब सर्च करनी पड़ेगी न्यू। लेकिन लेकिन जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए प्लेजर होगा। क्यों? क्योंकि बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, क्योंकि और बच्चे भी आएंगे अगर न्यू बच्चे स्कूल में या फिर जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट में, तो उनके लिए प्लेजर होगा क्योंकि बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट होगा। अगर हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए पेन है, पेन फॉर स्टूडेंट्स, जब तक वो टीचर खुद छोड़ के नहीं चले जाती या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस नहीं हो जाते कि बच्चे वहां से पास आउट नहीं हो जाते, तो ऑनगोइंग ऑनगोइंग पेन है बच्चों के लिए। अब अगर हम एक्सटेंट चेक करते हैं, तो अगर हम बैड टीचर को रिपोर्ट कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल करंट स्टूडेंट्स जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो फ्यूचर में बच्चे पढ़ने आएंगे, वो सब पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे, क्योंकि बैड टीचर चले जाएगी वहां से। अगर हम उस बैड टीचर को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करेगा, सिमिलरली करंट एंड फ्यूचर स्टूडेंट्स को, प्लस देयर फैमिलीज को भी मे बी। तो जब हम ये सारे फैक्टर्स इस चीज पे अप्लाई करेंगे, वेदर टू रिपोर्ट बैड टीचर और नॉट, तो हम देखेंगे कि जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, जो वाइड स्प्रेड पेन है जो टीचर बच्चों को दे रहा है उस टाइम, वो आउटवे कर रहा है द पेन ऑफ रिपोर्टिंग हर। हमें मीन्स उसको रिपोर्ट कर ही देना चाहिए टीचर को, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, प्लस उसका इफेक्ट ज्यादा है बैड टीचर का, तो उनको रिपोर्ट करना ही सही रहेगा। तो कंक्लूजन क्या है इस एग्जाम्पल का, कि द एक्शन दैट मैक्सिमाइजेस ओवरऑल यूटिलिटी, दैट इज हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इज टू रिपोर्ट द टीचर। क्योंकि रिपोर्ट ना करने से सिर्फ टीचर को हैप्पीनेस मिल रही है, और रिपोर्ट करने से बहुत सारे बच्चों का स्टेक है, जैसे कि प्रेजेंट स्टूडेंट और जो फ्यूचर में स्टूडेंट आएंगे, उन सबको हैप्पीनेस मिल रही है, तो हमें उसको रिपोर्ट ही कर देना चाहिए। According to Bentham, interest is of two categories: individual interest and community interest. Bentham says that there is no conflict between these two interests, as community interest is the sum total of individual interest. फॉर एग्जाम्पल, सिटी काउंसिल है, वो एक प्रॉपर्टी पे या तो पब्लिक लाइब्रेरी बनाना चाहती है या फिर एक प्राइवेट लग्जरी मॉल। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर हम देखें, तो फ्यू डेवलपर्स जो कि वेल्दी डेवलपर्स हैं, वो मे भी चाहेंगे कि वहां मॉल बन जाए क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा। बट मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स हैं, मैक्सिमम सिटीजन्स हैं, वो क्या चाहेंगे कि वहां पे लाइब्रेरी बन जाए फॉर एजुकेशन पर्पसेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, राइट। वो चाहेंगे कि वहां लाइब्रेरी बन जाए। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम एनालिसिस, द काउंसिल शुड चूज द लाइब्रेरी। वाई? क्योंकि जो टोटल प्लेजर है लाइब्रेरी बनाने से जो जनरेट होगा, तो उससे काफी सारे लोग बेनिफिट होंगे, जो पूरी कम्युनिटी के लोग हैं, दे मे यूज इट फॉर नॉलेज पर्पसेस, एजुकेशन पर्पसेस, तो वो आउटवे करेगा उस सम लॉट ऑफ पीपल को जो कि अपने प्रॉफिट के लिए वहां मॉल बनाना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, अल्टीमेटली वही जब हम उन सबको मिलाएंगे, तो अल्टीमेटली वही कम्युनिटी इंटरेस्ट बन जाएगा। जब इतने सारे लोग वहां लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, तो हमें वही चूज करना चाहिए, अल्टीमेटली वही कम्युनिटी इंटरेस्ट बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम, द कम्युनिटी इंटरेस्ट इज बेटर सर्व्ड बाय लाइब्रेरी देन योर लग्जरी मॉल, जिससे सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ही प्लेजर पाएगा। Bentham desired to ensure happiness of the community by attaining four major goals, namely security, equality, subsistence, and abundance. Security
सिक्योरिटी बेंथम ने सबसे ज्यादा क्रूशियल ऑब्जेक्टिव माना है. बेंथम कंसीडर्ड सिक्योरिटी एज द मोस्ट क्रूशियल ऑब्जेक्टिव. According to Bentham, security involves protecting individuals and their possessions from both crime and arbitrary interference from the government. For example, by making reliable police force and legal system. Next is your equality. Bentham recognized that extreme disparities in wealth and power could lead to social unrest. तो अकॉर्डिंग टू बेंथम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हमें मिटिगेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, वो भी केयरफुली. क्योंकि अगर हम मान लो किसी की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर रहे हैं इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए, तो इट विल हैम्पर देयर सिक्योरिटी, राइट? तो हमें इनइक्वालिटीज को भी खत्म करना है और इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी को भी हैम्पर नहीं करना है. क्योंकि अगर हम लोगों की प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर लेंगे तो इट विल डिस्ट्रॉय द मोटिवेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट? Next is your subsistence. The government must ensure that all citizens have access to basic necessities for survival. This prevents physical suffering and ensures stable social order. For example, हम कोई system implement कर सकते हैं to provide food, shelter and basic healthcare to needy. नेक्स्ट गोल इज योर abundance. अकॉर्डिंग टू Bentham, एक बार हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई है, देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड prosperity to generate surplus wealth. For example, offering rewards for useful innovations to stimulate the economy. He firmly believes that people's right to property must be respected for the welfare of the state. Society should encourage private enterprise so as to promote opportunities for subsistence and abundance. पहले भी मैंने बताया है कि बेंथम laissez-faire को बहुत importance देता था, which automatically mean that he encouraged private enterprise because of less interference of the government. According to him, जब individuals confident होंगे कि उनका लेबर का फ्रूट उनके पास ही रहेगा, nobody can seize their property arbitrarily, तो वो obviously automatically they will work harder. तो इसलिए according to Bentham, private enterprises should be encouraged. Bentham attacked the concept of natural law and he called natural rights as nonsense. He called natural rights as nonsense upon stilts. Stilts का मतलब होता है pillar, means lacks a solid foundation. Bentham believed that rights are not inherent, but they are created only by laws made by the government. Bentham is known to be as founder of jurisprudence and John Austin as father of jurisprudence. Austin was a disciple of Bentham. This is just an extra information that I have provided to you guys. Disciple का मतलब शिष्य, चेला you can say. Bentham is called ethical hedonist. दो टाइप के hedonism होते हैं, psychological and ethical. Psychological hedonism is a theory about human nature. ये बोलती है कि ह्यूमन बींग्स नेचुरली ही प्लेजर को सीक करते हैं और पेन को अवॉइड करते हैं. इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव, नॉट हाउ दे शुड बिहेव. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स ताकि उसको प्लेजर मिले, एंड अ पर्सन अवॉइड टचिंग फायर ताकि उसको पेन ना हो. Ethical hedonism, on the other hand, is a theory based on morality. इसके अकॉर्डिंग एक्शन मॉरली राइट है अगर वो प्लेजर क्रिएट कर रहा है और मॉरली रॉन्ग है अगर वो पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं. इट टेल्स अस हाउ पीपल ought टू एक्ट, कि वो कैसे एक्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर चैरिटी देना हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो मॉरली गुड है. अगर स्टीलिंग स्टीलिंग अगर सफरिंग क्रिएट कर रहा है तो वो मॉरली रॉन्ग है. Ethical hedonism holds that pleasure is the ultimate moral good and pain is the ultimate moral evil. Moving on to criticism of Bentham theory, according to Friedman, his theory fails to balance individual interest with the interest of the community. For example, government poor farmers का land acquire कर रही है to build highway over it for public benefit. According to Bentham, ये correct है, justified है, क्योंकि इससे benefit हो रहा है एक large group of people का, क्योंकि highway बन रहा है. लेकिन individual interest का क्या, उन poor farmers का क्या जिनका land हम ले रहे हैं. तो बेंथम की थ्योरी इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ कम्युनिटी इंटरेस्ट का बैलेंस करने में नासमर्थ रही है, राइट? Another criticism advanced against Bentham hedonic calculus is that pleasure and pain alone cannot be the final test of the adequacy of law.
Obviously, law cannot be only about pleasure and pain, happiness only. Law justice, rights, equality, morality उन सब चीजों को भी प्रोटेक्ट करता है. कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि मे बी पेन दे बट येट दे आर नेसेसरी एंड जस्ट. फॉर एग्जाम्पल पेइंग टैक्स. पेइंग टैक्स कॉजेज फाइनेंशियल पेन टू इंडिविजुअल्स. उससे कम्युनिटी को तो पेन ही होता है बट एक्चुअल में टैक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फंड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, योर वेरी एसेंशियल फॉर योर गवर्नेंस. इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लोग खराब है. पेन इज जस्टिफाइड फॉर पब्लिक जस्टिस एंड ऑर्डर. तो इसका मतलब ये है कि happiness alone, pleasure alone cannot be benchmarks for law. That's it for this video, everyone. Thank you for watching. And don't forget to subscribe and hit the bell icon. Bye bye.